جو سیریز میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کا عنوان ہے آخری زمانے کی نشانیاں، The Signs of the End Time۔ اور آج اس سلسلے کا پہلا پیغام ہے، یعنی پہلی نشانی۔ تو ہم آیت پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ کہیے آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ اجر لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ریوارڈ، انعام۔ تو اس کا مطلب انعام یا اجر یا ریوارڈ صرف ایمانداروں کو ملے گا جنہوں نے توبہ کی، نجات پائی، یسوع کے لہو کو قبول کیا، یسوع کے کفارے کو قبول کیا، ان کو یہ اجر ملے گا۔ اور یسوع کہہ رہا ہے میں آ رہا ہوں اجر دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے نہیں۔ وہ علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو ابھی آج ہم بات کر رہے ہیں یسوع جلد آ رہا ہے، اجر لے کے آ رہا ہے، انعام لے کے آ رہا ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے نشانیاں کیا ہوگی؟ کہیے ہلیلویا۔ تو آخری زمانے کی نشانیوں میں سے جو نشانی آج میں بیان کروں گا وہ بڑی حیرتناک بھی ہے اور بڑا سوچ و بچار بھی اس میں کرنا ہے۔ اور یہ جو نشانیاں آپ کو بیان کر رہے ہیں ہم، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرایا جائے، خوف پیدا کرنا نہیں ہے۔ یہ جب آپ نشانیاں سنیں گے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا، آپ کے اندر تیاری پیدا ہوگی اور آپ یہ جانیں گے کہ یسوع مسیح جلد آ رہا ہے، آپ کو تیار ہونا ہے۔ اور نشانیاں جو بیان کروں گا اس کا مقصد میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ تیار ہوں یسوع کے آنے کے لیے، ڈرانا نہیں ہے میرا مقصد۔ تو پہلی نشانی، جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی آئیں گے اس دنیا میں اور جھوٹی تعلیمات پھیلائیں گے، بدعتیں ہوں گی۔ اب آپ یہ جو بدعت لفظ ہے اس کا مطلب سمجھیے۔ آخری زمانے میں بدعتیں آئیں گی، یعنی ایسی تعلیمات جن کی بنیاد بائبل میں نہیں ہے، یعنی وہ تعلیم جس کا کوئی ثبوت بائبل میں نہیں ہے، اب کوئی مشن بھی وہ کلام سناتی ہو وہ بدعت ہے۔ پھر سن لیجئے جو میں نے کہا، آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بدعتیں ہوں گی۔ کوئی بھی مشن ہو، کوئی بھی گروہ ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، اگر کوئی ایسی تعلیم دے جو بائبل میں نہیں ملتی، اسے ہم ہیریسی، کلٹ یا بدعت کہتے ہیں۔ تو یسوع نے بتا دیا تھا کہ یہ ایسا ہوگا۔ آئیے پڑھتے ہیں متی کی بات پر لکھی گئی انجیل 24واں باب 24ویں آیت۔ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے یہ پیغام۔ یہ لکھا ہے کیونکہ جھوٹے مسیح اور جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے بڑے بڑے نشان اور عجیب کام دکھائیں گے کہ اگر ممکن ہو تو برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لیں۔ یسوع نے کہا کہ جھوٹے نبی آئیں گے اور ایسے عجیب کام کریں گے کہ کئی ایماندار بھی گمراہ ہو جائیں گے، بڑے بڑے کام۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار آتا ہے دعا کرانے کے لیے اور دعا کرنے والا کہتا ہے کھڑے ہو جائیں اور اس کی جیب میں سے تعویذ نکال کے دیتا ہے، حالانکہ بندہ گھر سے نہا دھو کے تیار ہو کے آیا، جیب میں تعویذ رکھ کے نہیں آیا۔ لیکن یہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ہے۔ یسوع مسیح نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ شیطان کی طرف سے، شیطان کے بارے میں بتائی کہ وہ ایسے کام کرے گا۔ اور شیطان ہمیشہ نقل کرتا ہے، شیطان ہمیشہ نقل کرتا ہے اچھی باتوں کی، یعنی جو کام خدا کے کلام میں اچھے کام ہیں ان کی نقل کر کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایماندار دعا کرتا ہے، کہتا ہے میں یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں اے بدر نکل جا۔ تو جو نقل کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اندر سے وہ منتر پڑھتے ہیں
अंदर से कुछ और पढ़ रहे होते हैं, कोई उन्होंने चिल्ला काटा होता है और बाद में लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं यीशु के नाम से निकल जाए। तो ये इस किस्म के लोग होंगे, लेकिन आपको मैं आखिर में पहचान बताऊंगा, पहचान भी लेंगे कि ये कैसे होंगे। झूठे नबी, नकल करने वाले। पुराने अहदनामे में मूसा के मार्फत खुदा ने हुक्म दिया था कि अगर कोई नबी गुस्ताख हो, अगर कोई नबी वो बात कहे जो वायु ने नहीं लिखी, उसे कत्ल कर दिया जाए। आइए पढ़ते हैं इसकिस्सा 18वां बाब 20वीं आयत लिखा है, लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात कहे जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, वो नबी कत्ल किया जाए। बड़ी सख्ती थी। नए दौर में तो हम कुछ नहीं कहते और कत्ल करने के लिए कोई हमें कहा नहीं गया, लेकिन उस वक्त कहा गया था। अब नए दौर में तो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो गलत तालीम दे, तो बस यही है कि उससे दूर रहे, उसके लिए दुआ करें और कि वो तौबा करे, और दुआ करेंगे लोग उससे बचे। और जब खुदा यीशु मसीह आसमान पे चला गया, कलीसियाएं कायम होना शुरू हुई। शागिर्दों के जमाने में ही गलत तालीमात आ गई थी, झूठे नबी आ गए थे, लेकिन वो रेशो नहीं थी जो अब है। कब थे? क्योंकि बदतदरीज ये रेशो बढ़ती चली जा रही है। एक आयत पढ़े, पहला यूना 4वां बाब और उसकी पहली आयत। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आजमाओ कि खुदा की तरफ से है या नहीं। आगे गौर से सुनिए, देखिए भी, सुनिए भी, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं। यदि यीशु मसीह के आसमान में जाने के कुछ 60-70 साल बाद ये मुकाशवा की किताब लिखी गई है, तो यूहन्ना कहता है बहुत से झूठे उस्ताद, झूठे नबी उठ खड़े हुए हैं। इसका मतलब उस जमाने में भी थे, वो कोई तादाद नहीं थी। अब हैरान हो गया आज का क्या हाल है। आज तो आप कहते हैं गली गली में बिदअतें हैं, गली गली में लोग जो है वो गलत तालीम फैला रहे हैं, और लोग बड़े इल्हामात से, बड़े शौक से उनके पीछे जाते हैं, ना जानते हुए कि वो आपको गुनाह में उकसा रहे हैं, वो आपको बदी में उकसा रहे हैं। परखना कैसे है? जैसे सोने को जो चोरी है या सुनार है वो परखता है एक पत्थर के ऊपर रगड़ के कसौटी में, ऐसे ही हमारे पास एक कसौटी है और वो बाइबल मुकद्दस है। जरूर आप लोगों को देखिए गलत तालीमात को, लेकिन परखे बाइबल से। तो अब इंतहा हो चुकी है ऐसे लोगों की। चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूंगा। पहला नाम है जिम जॉन्स। इसने एक फिरका शुरू किया, उसका नाम था पीपल्स टेंपल। 1950 में उसने ये शुरू किया और उसका दावा ये था कि मैं मसीह हूं। यीशु ने क्या कहा था? मेरे बाद अब कई लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं। जिम जॉन्स ने 1950 में कहा मैं मसीह हूं, और बहुत से लोग उसके पीछे लग गए। और जब बहुत से लोग उसके पीछे लगे, फिर उसने उनको उकसाया, अगर जल्दी आसमान में जाना है तो जल्दी मर जाओ। और 900 लोगों ने खुदकशी कर ली और मर गए, सिर्फ उसके उकसाने में आसमान में जाने का तरीका। और भाई आसमान में जाने का तरीका मौत नहीं है। वो तो ठीक है, मौत आनी है, मौत के बाद अगर आप निजात याफ्ता है, खुदा के पास जाएंगे। आसमान में जाने की शर्त तौबा है, निजात है। इसने कहा आसमान में जाने के लिए शर्त यह है कि मर जाओ। तो 900 लोग मर गए, और उसके बाद 1978 में इसकी अपनी भी डेथ हो गई और लोग इस फिरके को छोड़ गए। दूसरा वाकया बताना चाहता हूं, और वो है साउथ कोरिया का। वहां में एक शख्स जिसका नाम था सान मून, उसने एक फिरका शुरू किया, मिशन कायम की, और उसका नाम था यूनिफिकेशन चर्च। अब इसका दावा क्या था? इसका दावा यह था कि यीशु मसीह जो काम नामुकम्मल छोड़ के चला गया है, मैं उनको पूरा करने के लिए आया हूं। मैं दूसरा मसीह हूं। इसने कहा मैं यीशु के नामुकम्मल कामों को मुकम्मल करने आया हूं। ये सियासी बंदा था, सियासी असर रसूख था और सोशल वर्कर भी था। बहुत लोग सोशल काम करते हैं, यतीम बच्चियों की शादी करा देते हैं या बेवाओं की मदद करते हैं, which is good, not bad,
लेकिन इसका मकसद कुछ और था। इसमें बहुत सी इज्तिमाई शादियां कराई, सारा पैसा इसने खर्च किया, जोड़ों को बुलाया जिनकी शादियां होने वाली थी और उनको बुलाया और उनका इकट्ठा निकाह किया और बहुतों को खाना खिलाया और कई शादियां, इज्तिमाई शादियां इसने कराई। ये बिदअत थी जो काम कर रही थी, अगरचे बानी तो मारिया 2012 में, लेकिन ये बिदअत अभी भी चल रही है कोरिया में और शायद और मुल्कों में भी। तीसरी मिसाल, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आपको होशियार हो जाना चाहिए कि यीशु मसीह जल्द आने वाला है। उसने कहा था मेरे आने से पहले ही होगा। तीसरा नाम है डेविड कुरैश। डेविड कुरैश जो है ये भी अमेरिका में था। 1990 में इसने एक तहरीक शुरू की और ये 3 साल ही चली। इसने कहा मैं आखिरी नबी हूं, आई एम द लास्ट प्रॉफिट। एक और बात कही जिसका जिक्र मुकाशवा में है कि वो मोहरों को खोलने आएगा, वो मैं हूं। पहला दावा आखिरी नबी हूं, दूसरा दावा मैं मोहरों को खोलने वाला हूं। और फिर क्या हुआ, इसने लोगों को इस कदर गुनाह में उकसाया, बदी में उकसाया कि देखा देखी लोग उसके पीछे गए और इसने बेरागवी का रास्ता इख्तियार किया और जिनसी जो गुनाह है इसने उसको भी आम किया। यहाँ तक कि अमेरिका की जो हुकूमत है उसको मुदाखलत करनी पड़ी। अमेरिका का जो FBI है उसने इसको चारों तरफ से घेर लिया और 80 लोग इसके साथ थे, उनको हुकूमत की तरफ से कत्ल कर दिया गया। तो ये तहरीक खत्म हो गई। एक और शख्स एलन जॉन, ये ऑस्ट्रेलिया में था और इसने जो मिशन शुरू की उसका नाम था डिवाइन ट्रूथ। वो मैंने कहा ना असल की नकल करते हैं इलाही सच्चाई। इलाही सच्चाई तो यीशु मसीह है। इसके मिशन का नाम, इसके ग्रुप का नाम था डिवाइन ट्रूथ और इसका अकीदा ये था मेरा सेकंड जन्म है और मैं दूसरा मसीह हूं। और उसकी बीवी, उसने कहा, उसका नाम तो था मैरी लुक, लेकिन उसने कहा मैं मरियम मगदलीनी का दूसरा जन्म हूं। यह अपने आप के बारे में कह रहे मैं यीशु का दूसरा जन्म हूं, उसकी बीवी कह रही है मरियम मगदलीनी का दूसरा जन्म हूं। और ये दोनों ने ये फिरका शुरू किया और लोगों को गुनाह में उकसाया और ये तहरीक भी खत्म हो गई। और तहरीक अभी भी है लेकिन ना होने के बराबर है। और उसका ये भी कीदा था और जो बड़ा खतरनाक है, जरा मेरी तरफ देखिए। ये जो बंदा जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं एलन जॉन, उसका ये भी कीदा था कि जो बाइबल है ये बदल चुकी है। पहले घट सन कहने वाले कि बाइबल बदल चुकी है और जो भी कहते हैं बाइबल बदल चुकी है, एक मैं कुछ नहीं कहता उन्हें, आप भी कुछ ना कहें, उनके लिए दुआ करें। लेकिन अगर आपसे कोई कहे बाइबल बदल चुकी है तो एक बात जरूर कहे कि असल और नकल दोनों को ला के हमारे सामने रख दें, ये है बदली हुई और ये है पुरानी असल। तो जो लोग ये कहते हैं बाइबल बदल चुकी है, अब उनसे सबूत मांगे कि असल कहां है। अगर वो असल नुस्खा आपके पास नहीं लाते तो फिर वो झूठे हैं। बाइबल तब्दील नहीं हुई, बाइबल करोड़ों लोगों को बदल चुकी है, तब्दील कर चुकी है। बाइबल जिंदा किताब है, इलाही किताब है, जिंदगी को बदलती है। ये जिंदगी की रोटी है, जिंदगी का पानी है, ये शहद कितना मीठा है और ये जिंदगी को बदलने वाली किताब है। बंद बाबर बूंदे बूंद में से होकर गुजर जाती है। ये चिराग है, ये रोशनी है, ये तलवार है, ये हथौड़ा है और ये खुदा का कलाम ऐसा कलाम है इसने आज तक करोड़ों लोगों को बदल के रखा है। तो इस बंदे ने कहा ये बदल चुकी है। तो जो भी कहते बदल चुकी है उनसे कहे भाई आप बाइबल पढ़ना शुरू करें, आप भी बदल जाएंगे। बोले हालेलुया। एक और शख्स डेविड, नाम है उसका डेविड बर्ग, अमेरिका में इसने बिदअत शुरू की और इस बिदअत का नाम है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। मतलब क्या, खुदा के बच्चे। डेविड बर्ग ने जो तंजीम कायम की या फिरका बनाया उसका क्या नाम था? हेलो, क्या नाम था? खुदा के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड।
بعد میں اس نے اس کا نام بدل دیا اور نام رکھ دیا دا فیملی انٹرنیشنل. اور یہ سب سے خطرناک فرقہ تھا, ختم ہو گیا. سنیے, یہ فرقہ یا جو اس کا بانی یہ کہتا تھا کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو وہ ننگے تھے, لہذا جب چرچ میں آؤ تو آ کے اپنے کپڑے اتار کے ننگے اس کی عبادت کرو, اصلی حالت میں آ جاؤ, سمجھو کہ ہم باغ عدن میں ہیں, آدم اور حوا کی طرح ننگے ہو جاؤ. یہ سچی بات بتا رہا ہوں. برہنہ پرستش یہ کرتے تھے, اور اس سے ہوتا کیا تھا, جنسی بے روی بے شمار لوگ ان کے پیچھے لگے جو جنسی خواہشات کے شہوت پرست تھے, انہوں نے اس کو جوائن کیا. اور وہاں ہوتا کیا تھا, جا کے ننگے وہ عبادت کرتے تھے. کیسے کرتے تھے مجھے تو نہیں پتا, لیکن اتنا ہے وہ اپنے آپ کو آدم اور حوا کے اس ماحول میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے. یہ بدعت تھی. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ فرقہ پاکستان میں بھی آیا تو وہاں آرڈر جاری ہوا کہ چلڈرن آف گاڈ نامی تنظیم کے جتنے لوگ ہیں امریکہ سے آئے تھے وہ 24 گھنٹے کے اندر پاکستان سے نکل جائیں. تو اس وقت 1978 میں ان کو پاکستان سے نکال دیا گیا. بولے شکر, کہیں ہاللیلویا, کہیں کہ شکر ہے خدا کا. اور اس یہ تنظیم ختم ہو چکی ہے. پریز دی لارڈ. ایک اور بندہ مائیکل ٹرنر, یہ بھی امریکہ میں تھا, 1948 میں پیدا ہوا, 2022 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اس نے کہا میں مسیحیت کی بحالی کے لیے آیا ہوں. یہ کہتا تھا مسیحی لوگ جو ہے وہ غلط راہوں پہ چل رہے ہیں, میں اس راہ پہ لے کے جاؤں گا جس سے یہ جو اصلی راہ ہے. اور یہ فرقہ اس نے نام رکھا تھا گریٹ اسمبلی. بہت بڑا نام تھا, لیکن چونکہ اس نے کہا میں مسیحیت کو بحال کرنے آیا ہوں. بحال کون کرتا ہے؟ خدا میرا جبان ہے, مجھے کمی نہ ہوگی. آگے کیا ہے, وہ میری جان کو بحال کرنے والا یسوع ہے. اس نے دعویٰ کیا میں بحال کرنے آیا ہوں, اور یہ فرقہ بھی جاتا رہا. ایک اور تنظیم اور یہ بھی موجود ہے, اور اس کا نام ہے, اس تنظیم کا نام ہے چرچ آف جیسس کرائسٹ, یعنی آخری زمانے کے مقدسوں کا چرچ جو یسوع مسیح ہے. یہ اس نے نام رکھا. اور اس بندے کا نام میں نے آپ کو ابھی نہیں بتایا, نام ہے جوزف سمیت. فیمس نام ہے. یہ فرقہ ابھی بھی ہے. خدا سے دعا کرے پاکستان میں نہ ہے, دوسرے ملکوں میں ہے. اور اس کا دعویٰ تھا میں آخری نبی ہوں. پھر اس نے ایک کتاب چھاپی بائبل کے متبادل, اور یہ بائبل سے چھوٹی کتاب ہے, کافی چھوٹی ہے, 300-400 صفحے کی کتاب ہے. وہ اس نے چھاپی اور اس نے کہا اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں یہ نبیوں کی کتابیں ہیں, ان نبیوں کی کتابیں ہیں جو امریکہ میں پیدا ہو گئے. اور یہ کتاب جو ہے, اس کتاب کا نام ہے دا بک آف مارمنز. اور یہ شخص جو ہے جن کی اپنی بائبل ہے, یہ مارمنز کہلاتے ہیں, دنیا کے کئی ملکوں میں ہیں. دعا کریں یہ پاکستان میں نہ آئے, تاکہ یہ دعا کریں کہ دنیا سے ان کا خاتمہ ہو جائے. لوگوں کو یہ گناہ پہ اکساتے ہیں اور بائبل کے متبادل بک آف مارمنز دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. بہت سی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. ایک اور فرقہ, اور اس کو ذرا غور سے سنیے, یہ پاکستان میں ابھی بھی ہے, ابھی بھی پاکستان میں یہ ہے. جب آپ کو یاد ہوگا شروع میں نے کیا کہا کہ جو بدعتیں ہوتی ہے اصل کی نقل کرتی ہے, تو انہوں نے اپنا نام رکھا یہوہ کے گواہ, یہوہ's وٹنسز. اور جو بانی ہے اس کا نام ہے چارلز رسل. اور اس کی تعلیم یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح ہماری طرح ایک انسان ہے. اس کا یہ بھی ان کی تعلیم ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں. اور وہ پاکستان میں بلکہ بہار کالونی میں بھی وہ پھرتے ہیں, اپنا کیمپ لگاتے ہیں اور وہاں پہ اپنا اسٹال لگاتے ہیں, اور ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں, پہچان کر لیں. اس کا نام ہوتا ہے مینار اومیگا بانی.
वॉच टावर उन किताबों का नाम होता है, और उसमें तालीम होती है। बाकी उनमें कई किताबों में ये भी लिखा होता है खुदा उनकी बादशाहत का ऐलान। ये भी आपको वो खुदा की बादशाह के बारे में बता के और ये बता के कि आप आसमान की बादशाही की तालीम दे रहे हैं, ऐसा लिटरेचर आपको देते हैं जिसकी बुनियाद बाइबल में नहीं है। दरवाजे खटखटाते हैं, काश के हम लोग भी उससे सीखे, मतलब उनके गलत काम नहीं, ये सीखेंगे कितना जज्बा है उनके अंदर। घर घर जाते हैं, टीमें बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं हम यीशु की बादशाही का पैगाम आपको देना चाहते हैं। बाद में किताबें देते हैं और वो बताते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, खुदा का बेटा अगर है तो हम भी हैं। अगर आपके घर आए तो उनसे भाई, जब आपको पता चल जाए कि वो क्या तालीम देना चाहते हैं और वो कहते हैं हमें बिठाइए अपने घर में, तो उनसे कहे भाई बात ये है, हमें मालूम है कि आप क्या कहना चाहते हैं, लिहाजा जो कुछ आपने कहना वो तो हमें मालूम है कि आपने क्या कहना है, लेकिन जो हमने कहना है वो आपको मालूम नहीं है। लिहाजा आप चुप होके हमारी बात सुने, जो आप कहना चाहते हैं हमें मालूम है, और जो हम कहना चाहते हैं वो मालूम नहीं है, आप हमारी बात सुने। तो हम ऐसे खड़े खड़े सड़क के ऊपर चौक में मैडम और मैं हम खड़े होकर उनको 5 मिनट में तालीम देते थे, तौबा करो, यीशु मसीह को निजात देता कबूल करो, यीशु आपके लिए हुआ, उसने आपके लिए जान दी, आपके गुनाहों के लिए हुआ, यीशु को कबूल करे, गुनाहों से माफी मांगे, यीशु मसीह आने वाला है, अब वरना आप जहन्नुम में चले जाएंगे। और मैं कहता था जी हमारी बात खत्म हो गई, ये मेरा नंबर है, मजीद सवाल हो तो आप इस नंबर पे कर सकते हैं, और हम बाय बाय कर देते थे। अगर आपके पास कोई आता है उसको तालीम दें और उसे जान छुड़ाए, घर में घुसने ना दें। यीशु मसीह ने क्यों खबरदार किया था कि मैं जल्द आने वाला हूं, आखिरी ज़मानों के बारे में क्यों खबरदार किया था? ताकि हम चुकन्ने हो जाएं। ये भेड़ियों के देश में आते हैं लोग, गलत तालीम देते हैं, बाइबल में उनकी बुनियाद नहीं है। यीशु ने कहा मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 15वीं आई, लिखा है झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं मगर बातिल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, मगर बातिल में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आगे, उनके फलों से तुम उनको पहचान लो, पता चल जाएगा। ऐसे वो घास नहीं डालने, घर में नहीं घुसने देना, ठीक है। गलतियों के खत में एक आपके लिए हदायत है, पढ़िए पहला बात 6 से 8 आए। असल में पौलुस जब गलतिया की कलीसिया को खत लिख रहा था तो गलतिया की कलीसिया के अंदर बिदअतें आ गई थी, अंदर गलत तालीम वाले फिर आ गए थे। तो पौलुस ने गलतिया की कलीसिया को लिखा, मैं ताज्जुब करता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माहिर होने लगे हो। तौबा की, निजात पाई, पानी का बपतिस्मा लिया, लुत्फ का बपतिस्मा लिया और जल्द फिर गए। तो कहता मैं हैरान हूं क्यों ऐसे हुआ है। आगे लिखा है, मगर दूसरे नबी के पास ऐसे हैं जो तुम्हें गुमराह करते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे बड़े गौर से सुने और स्क्रीन पे देखें, बल्कि मेरे पीछे बोले, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाऊन है। जो कलाम मैंने नहीं सुनाया, जो बाइबल में नहीं लिखा, पर उसके अंदर जो तालीम मैंने नहीं दी, आसमान से फरिश्ता भी आ जाए वो तालीम दे तो बदनाम दी है, मत जाए पीछे। बहुत सी तालीमात फिर रही है। और फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हम तो तुम बड़े हो गए हो, कितने साल हो गए गुड न्यूज़ चाहते हैं, कितने साल है उन्होंने निजात पाया, हम तुम बच्चे ना रहो, बड़े हो जाओ। पढ़े 114 बाब 14 में आए, ताकि हम आगे को बच्चे ना रहे और आदमियों की बाजीगरी और मकारी के सबब से उनके गुमराह करने वाले मंसूबों की तरफ हर एक तालीम के झोंके से मौजों की तरह उछलते फिरते ना रहे। वही जैसे मैंने अभी कहा था
किसी ने कहा वहां जाके मत जाए किसी के पीछे, पर हाँ अगर जाना चाहते हैं जाए, पर के अगर बाइबल के मुताबिक है तो ठीक है, लेकिन आपका जो चर्च है वो आपका चर्च है। वैसे जो सही है, जो बाइबल के मुताबिक ठीक तालीम देना देते हैं, उनके पास जा सकते हैं। मैं रोक नहीं रहा, जो ठीक तालीम देते हैं उनके पास जाए, अपना चर्च संडे को करें, बाकी दिनों में आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपको नजर आए कि ये बाइबल के मुताबिक नहीं है तो फिर मत जाए, उछलते फिरते ना रहे। लोग आसमाएं, खबर डाले, आंखें खुली रखे, आसमाएं आंखें खुली रखे। और आखिरी आए पहला यूना 4 बाब पहली आए, ऐसी जो हालिक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूह को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। मत जाए आंसू के पीछे, मत जाए, परखें। और बाइबल में पौलुस ने कुरिन्थियों के खत में वाज़ेह बता दिया कि कैसे परखना है। बाइबल से परखें, ऐसों के पास मत जाए। आखिर में कहना चाहता हूँ, शुक्र करें एक निशानी पूरी हो रही है। ये शुक्र नहीं कि झूठी तालीमात आ रही है, ये शुक्र नहीं कि झूठे मसीह आ रहे हैं, ये शुक्र नहीं कि झूठे नबी आ रहे हैं, ये शुक्र करें कि यीशु मसीह के आने की निशानियों में से एक निशानी पूरी हो रही है। यीशु राजा आने वाला है। हालेलुया, कहिए हालेलुया, सब कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। यीशु राजा आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आसमान पर ले जाके वो हमको जब निशानियां मैं बताऊंगा, आपने शुक्र करने की निशानियां पूरी हो रही है। अगली दफा जो निशानी है आपको हैरान कर देगी। तैयार हो गया है, खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।